हॅलो एव्हरीवन अँड वेलकम टू माय अनदर व्हिडिओ. मैं हूँ चित्राली वांदे. मी समरा स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटीला रशियाला 6th ईयरला मेडिकल स्टूडेंट आहे आणि मैं नागपुर महाराष्ट्र में आहे. सो बेसिकली भाई देखो, आज हमें केस हिस्ट्री लेनी थी. ठीक है, एक पेशेंट मतलब कुछ पेशेंट दिए हैं, उनकी रोज़ केस हिस्ट्री, उनके सारे वाइटल्स रोज़ लेने हैं. बट द थिंग इज़ कि मैं एक नाइजीरियन के साथ जो मेरे ग्रुप है उनके साथ में गई, तो उन्होंने मुझे केस हिस्ट्री लेने से मना कर दिया. देन मैं उनके रूम में अकेले गई, तो उसने मेरे इतने अच्छे से बात करी, इतनी अच्छे से बात करी. तुम आने वाले वीडियो में देखोगे कि कैसे इतने, मतलब तुम अगर बता दो कि तुम इंडिया से हो तो ये लोग कितने सपोर्टिव हो जाते हैं. एंड बहुत सारे लोगों को इंग्लिश आती है, इन्होंने बताया कि हमको इंग्लिश आती है, हमें पढ़ाई जाती है, बट हम किसी को बताते नहीं. सो स्टे ट्यून्ड टिल व्लॉग. Я очень люблю Россию и русские люди. И я тоже. Вам любят индийские люди? Я люблю, да. Я очень люблю. У меня мечта У меня мечта у меня есть побыть. YouTube канал. Я выкладываю вот это видео на мой YouTube блог. Потому что у меня надо со видео с вами, пожалуйста. Очень хорошо, будем знакомы. Сейчас спишемся. Хорошо. Меня зовут Ольга, я из России, всю жизнь прожила в Самаре, имею 2 высших образования. Сюда я попала с кровотечением, с сильным кровотечением, обнаружила, что у меня обострение геморроя последней стадии. И в понедельник, 9 числа, будет операция. Проверяли кишечник, делали колоноскопию, с кишечником все хорошо. Вот очень сильный последней стадии геморрой. Держите вот этот телефон, я пишу свою информацию. Вам тоже надо на видео? Я надо видео с вам. Да? Скажите, Благодарю. а когда вам поступили здесь? Поступила я сюда в экстренном по скорой. Сейчас я обед положу, и мы с вами это Да. возьму, положу и продолжим дальше обсуши. Хорошо. А вы на каком еще? Держи телефон. Хорошо. Да. Скажите, пожалуйста, когда вам поступили? Вам тоже пойдет, 29 августа. 29 августа. Да, Да. по скорой помощи с обильным кровотечением. Ага. Жалоби? Жалобы. Встала и пошло, полилось из заднего прохода. Просто полилось по ногам. Пока я бежала в поликлинику, прям дорожка была такая кровяная. Обратилась в комнату неотложной помощи в железнодорожной поликлинике. И мне тут же вызвали скорую, поставили капельницу и привезли с кровотечением в клинику медицинского университета. Здесь мне сделали ФГДС, рентген грудной клетки малого таза, взяли анализы, сняли кардиограмму. И потом определили сюда. Здесь в приемном покое меня посмотрели, сказали, что нужна будет операция, но перед операцией мне сделали кровоостанавливающее. На паузу. Да. Сейчас прям секундочку. Так, на чем мы остановились? Дата рождения ваша? 9 ноября 76. И жалоби? Это вы так интересно пишете? Это у вас по-своему вы пишете? Да, на по-английски. Я поняла. Жалоби? Жалобы, но на данный момент, живот кровотечение до сих пор идет, но несмотря на то, что делают кровоостанавливающий, но это, наверное, все-таки спасает, что нет сильного У кровотечения. вас была температура? Нет? И давление нормально? Давление, я гипертоник. Гипотония. Гипертоник уже с 25-летним стажем. Вот. Лекарство вам пили? Вальсакор, либо валсартан. А вы, может, сфотографируете? Индопамид утром. Вальсакор 80 миллиграмм. Индопамид на утром, да? Да, только утром. Вальсакор 80 миллиграмм утром, 80 вечером. 3 раза мексидол. Мексидол. И Исопролол
Это как он еще называется? Бесопролог. В общем, как его по-другому? Конкорд. Бесопролог, конкорд. Хорошо, спасибо большое вам. Не за что. Вот. Это антигипертония. Буду здоровый. Благодарю вас. Да. Я вас благодарю от души. Благодарю вам. Спасибо. Все будет хорошо. Thank you so much. सो ये रहा पूरा कैंपस, ठीक है। एंड बहुत बड़ा कैंपस है यार, तो इतना बड़ा मैं दिखा भी नहीं सकती आप लोगों को इतने जल्दी, ठीक है। तो मेरी क्लास हो गई, क्लास भी हो गई। कितने पेशेंट की केस हिस्ट्री ली पता है मैंने? 12 पेशेंट की केस हिस्ट्री, 12। पता नहीं इतने सारे पेशेंट क्यों हैं, तुमको लगेगा बहुत मज़ा आता है। जितने ज़्यादा पेशेंट उतनी ज़्यादा ही सीखती है, उतना ही तुम्हें लिखना पड़ेगा। रेफरात भी लिखना पड़ता है, केस हिस्ट्री भी लिखनी पड़ती है। अभी मेरी क्लास ख़त्म हो गई है, अभी मैं जा रही थी घर। ये जो हॉस्पिटल है, तो अभी यहाँ से मेरी आज क्लास ख़त्म हो गई। मेरी हॉस्पिटल सर्जरी की साइकिल चल रही थी एंड यार उतना मतलब हॉस्पिटल सर्जरी की साइकिल चल रही थी एंड उतना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि भाई घूम फिर के नहीं आना पड़ता, जस्ट पीछे उतर के नीचे आना है। एंड पहले मेरे को दिक्कत होती थी सुबह उठने में, बट इस बार मतलब इस सेशन में मैं जल्दी भी उठ रही हूँ सही से एंड क्लास भी जा रही हूँ। थक जाता है इंसान बहुत यार। तुम सोचो सुबह 8 बजे से अभी यहाँ पे 4-5 बज रहे हैं, 4-5 बजे क्लास ख़त्म होती है। इसके बाद जाना है, लिखना है। तुम्हें आज के जितने भी पेशेंट्स मिले उन सब का तुम्हें लिखना है, सब कुछ केस हिस्ट्री, रेफरात लिखना पड़ता है, ठीक है। 15 पन्नों का रेफरात एंड तुम्हारे जितने दिन में पेशेंट देखे उतने पेशेंट्स की केस हिस्ट्री एक होनी चाहिए 7 से 8 पन्नों की, ठीक है। उससे ज़्यादा तुम लिख सकते हो बट मिनिमम 7 से 8 होना चाहिए। अभी यहाँ से एक सीधा शॉर्टकट है, ये तुम देख रहे हो, ये जाएगा सीधा मेरे हॉस्टल। तो चलते हैं हॉस्टल, बहुत भूख लग गई। एंड या दैट्स इट। जितने भी जूनियर अब तक आए नहीं है, आ जाओ भाई जल्दी जल्दी। हॉस्टल तुम लोगों के बिना सुना सुना लगता है, और क्या है, बस हो गया यही। ऐसी चलती है, ऐसी ही होती है। देखो तुम्हारी क्लासेस तो नहीं लगती प्रॉपर, ऐसे क्लास में बैठ के ज़्यादा कोई क्लासेस होती नहीं है। सुबह एक सेशन होता है, 8:30 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होती थी। सुबह एक सेशन होता है, मतलब उसमें जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं वो आते हैं एंड उन्होंने जितने कॉम्प्लिकेटेड केसेस एक दिन में देखे हैं, सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड केसेस, उसको वो डिस्कस करते हैं कि उन्होंने कैसे डायग्नोस किया, कैसे ट्रीट किया, ऐसे वैसे वो सब आके बताते हैं। वो 15-20 मिनट का वो सेशन होता है। उसके बाद हमारा नॉर्मल आएगा, हाथ दुखला उसके बाद हमारा नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल हमारे बताया जाता है, देन हमें पेशेंट अलॉट करे जाते हैं, ठीक है। तुम्हें अलॉटेड पेशेंट्स ऐसा हर डिपार्टमेंट में होगा, ठीक है। तुम लोगों को लगता है कि इंटर्नशिप कैसी होती है, तो जैसे अभी मेरा हॉस्पिटल सर्जरी चल रहा है, तो मैं हॉस्पिटल सर्जरी का यहाँ अलग क्लिनिक है, तो मैं हॉस्पिटल सर्जरी के पेशेंट्स देख रही हूँ। हाँ, इसके बाद मेरा जो भी साइकिल होगा, लाइक अगर पल्मोनोलॉजी रहा तो पल्मोनोलॉजी के हॉस्पिटल में जाओगे आप, वहाँ पे स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में स्पेसिफिक पेशेंट्स को ही तुम स्पेसिफिक डिजीज ही पढ़ोगे, ऐसा होता है। ये रहा, देख रहा, ये आ रहा है मेरा हॉस्टल। मस्त खाना बना के रखा होगा, जाएंगे खाना खाएंगे। थक गई भाई, एक्चुअली मैं बैग भी वहीं पे भूल गई, इसलिए मैं एप्रन के साथ, और ये देखो मैंने क्रॉक्स भी पहन रखे हैं, ठीक है। बहुत बड़े क्रॉक्स हैं मेरे, ये मेरे को हाइट भी देते हैं थोड़ी सी। तो बिजनेस सेकंड शूज़, मतलब जो बैग है वो वही रह गया। ये आ गया मेरा हॉस्टल। दैट्स इट। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो कतई बुरी बात है भाई, कर दो यार सब्सक्राइब। That's it. Thank you. Thank you for watching. Stay tuned.